this is a special video that I am making on the Atal Recruitment Drive, which is happening in Uttarakhand for LT lecturer. It's a common paper for English that we are going to have. And in this paper, we are going to deal with this is a small poster of that Atal Utkrasht Vidyalaya Recruitment Assistant Teachers for LT and Lecturer. And in this video, I'm going to exclusively give the paper solution of the batch. And all those who are seeing this video and are interested in joining our batch can join this group. The link is in the description of the video. Okay, guys. So moving ahead, we know that Atal in Uttarakhand is having a recruitment drive, and Atal recruitment is a very good option for all of us to get further, you can say, a good you can say a station. And Atal Vidyalaya are the Vidyalaya where government give special, you can say, importance to the infrastructure of the school. And guys, before starting that, just a quick introduction of myself here. As you can see, although it's a cliche and I would not like to dwell too much on my things, but still just a quick thing that I define myself as an entrepreneur, and recently got a GATE All India rank 38 here, you can see. And Net English 9 times, and JRF 3 sleds, Uttarakhand, Gujarat, and Himachal. Apart from that, managed to write one book on MCQs on literature, and also I qualified 2019 assistant professor Uttarakhand. Okay, so just a quick introduction of myself. Now let's dive straight into the paper. This is Uttarakhand lecturer, you can say, paper, and previous year paper. So let's see how the questions were and what was the level of the paper. So guys, here you can see this is a question paper for Atal lecturer level. And before starting the paper, I would like to give a quick review of the paper. So the paper is, you can say, if you know the basic nuances of grammar, अगर आपका ग्रामर पर बेसिक पकड़ है और खासकर आपका जो टेंसेस पर एक अच्छा कमांड है और लैंग्वेज से इन जनरल फैमिलियरिटी है, तो पेपर मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। इन्होंने सबसे पहले इसमें पूछे हैं इनकम्प्लीट प्रोवर्ब से, सो अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, सो दिस मींस दैट अ पर्सन always show its or a person always shows his true colors. So every cloud has a silver lining. We know that every, you can say, adverse situation has a positive impact as well, hidden positive impact. So the third is familiarity dash contempt. So the answer is breeds. So that means if things are too familiar, that is also not good. So as you sow, so shall you reap is the answer. जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे वाली बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अ बर्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और आगे बढ़े तो साथियों, इसमें एक पैसेज है, तो फिश पर बेस्ड ये पैसेज है, और इसके मैं आप लोगों को आंसर्स सीधा बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारे साथियों को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। उसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से शेयर करेंगे ग्रुप का। तो इसका आंसर है फिन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश कैन लिव आउटसाइड द वाटर, मड स्कीपर्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम थर्ड ऑप्शन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिश इज करेक्ट। सो मोस्ट ऑफ द फिश आर क्लोड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, या क्रिएचर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ फिश constitute the largest class is bony fish. Which of the fish is the smallest bony fish is seahorse. Which of the following places fish is not found? So answer is both the above, that is Dead Sea and Great Salt Lake. Okay, so then the next question is on the invention of phone by Graham Bell. Again, the passage was an interesting one. Let's quickly dive into the answers, guys. So the question 12 has, before I solve these answers, I recommend each of you to please read the passage carefully and then answer the question on your own, and then you can say
check the video. So 12th is C, his keen interest in scientific inventions. And Graham Bell made the telephone call of his invention to the emperor from the city of Philadelphia. It's in US. Then words emperor uttered by the emperor at Brazil suggest that he was extremely surprised by hearing the voice for the first time on phone. And then 15th, choose the word which is synonym of the word revolutionize. So that is changed drastically. And then pleasant का antonym पूछा है. So that is disgusting. Okay. Moving on to the next is choose the word which is antonym of continued. So the answer is irregular. Okay. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं गाइस. इसमें एरर द फाइंडिंग है. यही मेन होता है ग्रामर में जब आप किसी से गाइडेंस लेते हैं तो आप इसमें देखते हैं. तो देखिए, दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7. तो देखिए, दे विल रीच द ऑफिस एट 6, यहाँ पर उन्हें एट पहले लगाई है. एंड रीच एट होम, तो जब एट पहले लगाया तो इस क्लॉज से पहले भी एट अंडरस्टूड है, तो इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लगाया जाता है. तो आंसर जो है सी होगा. इसमें सी में एरर है, तो आइडियली एट को रिमूव कर देंगे. रीच होम बाय 7. Question number 19. The museum's revolving doors stopped the crooks as they jam halfway round. So understood है कि यहाँ पर stop लगा है guys, verb का second form लगा है. तो यहाँ पर jam जो है नहीं होगा. jam means अड़ा देना दरवाजे को. तो यहाँ पर भी verb का past form होगा jammed. jammed halfway around. ठीक है. तो टेंस का रूल है कि जो है एज या एंड लगता है तो उससे पहले जो टेंस होता है वही उसके बाद होता है. मदर्स कीप ऑन टू इनकरेजिंग. देखिए, कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद टू नहीं आएगा. कीप ऑन इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन. ठीक है, तो बी पार्ट में एरर है, टू को रिमूव करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल द important places in this town although I had been living here for 2 years. बेसिक टेंस का क्वेश्चन है. यहाँ पर प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लेगा, हैड बीन नहीं होगा. although I have been living here for 2 years. ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट प्रेजेंट में है तो दूसरा भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे. क्वेश्चन 22 में आते हैं गाइस. द रिसेप्शनिस्ट गिव अस मच इन्फॉर्मेशंस व्हिच वी नीडेड. देखिए, इन्फॉर्मेशंस कभी भी नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन. एक ऐसा नाउन है जिसका एस नहीं बनता, तो इंफॉर्मेशन ही रहता है. ठीक है, नाउन बेस्ड एरर है. एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड. तो साथियों, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, और यहाँ पर बीइंग रॉब्ड यानी कि दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव है. बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो जब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो एंड के बाद इवन यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, किल्ड. तो सेंटेंस तो प्रेजेंट में है मगर ये दूसरा पार्ट पैसिव में है, तो क्या हो जाएगा, सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल्ड इन कोल्ड ब्लड. ठीक है. द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फार्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश. अंडरस्टूड है कि फार्दर मींस जिसे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम इन एडिशन टू के सेंस में कह रहे हैं. तो यहाँ पर जब हम एक्स्ट्रा या और के संदर्भ में कहते हैं तो फर्दर का यूज करते हैं, FURTHER. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कि जो क्वेश्चन 25 है ये पूरे पेपर का सबसे प्यारा क्वेश्चन है. यू डैश बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुत ही ग्रामर का बहुत ही क्लासिकल सेंटेंस है. यहाँ पर यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर होगा. ठीक है, पूरी क्लास नोट कर लेंगे सभी साथी. हैड बेटर का क्या यूज होता है. हैड बेटर प्रेजेंट या फ्यूचर के सेंटेंस में यूज हो जाता है, और ये क्या दिखाता है वहां पर, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंस में यूज होता है तो ये दिखाता है शुड या ऑट टू. यानी कि बेहतर होगा कि तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, शुड के सेंस में यूज हो जाता है. और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि यू हैड बेटर कंसल्टेड. तो ये भी सही है, लेकिन अगर यहाँ पर हैड के साथ बेटर में कंसल्टेड हो जाता तो ये पास्ट का हो जाता कि तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था हो जाता. तो क्योंकि क्वेश्चन में कंसल्ट दिया तो वो भी सही माना जाएगा और वो शुड का सेंस देगा. ठीक है. अब क्वेश्चन 26 भी बड़ा ट्रिकी है. वन मस्ट ट्राई डैश बेस्ट टू अचीव सक्सेस. देखो, यहाँ पर वन है ना, जब वन का वैसे तो नॉर्मली पॉजेसिव वंस लगता है, ध्यान से देखना, लेकिन ये तब लगता है जब वन जनरल सेंस में होता है.
जब वन जनरल सेंस में, प्रत्येक के सेंस में होता है, प्रत्येक को अपना कार्य करना चाहिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। मगर अगर वन स्पेसिफिक सेंस में होता है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेंस में कह रहा है कि है ना, कि वन मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव सक्सेस। ठीक है, जनरल सेंस में नहीं कह रहा है, एक वन मीन्स एक किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में कह रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम वन स्पेसिफिक सेंस में लगाते हैं तो उसके साथ पजेसिव में हिज लगता है, और वन जनरल सेंस में लगाते हैं तो उसके साथ पोजेशन में वंस लगता है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है हिज लगना चाहिए इसका, है ना। फिर भी अगर ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, किसी को कोई इस पर क्रॉस मिलेगा आंसर तो मुझे कमेंट में लिखना या बताना ग्रुप में। द गर्ल इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल हो जाता है, लीन अपने साथ अगेंस्ट लेता है, सहारा लेना। फिर क्वेश्चन 28, जेन डैश वियरिंग हर सॉरी डैश हर ब्लू जीन्स टुडे बट यूजुअली शी वेयर्स अ स्कर्ट फॉर अ ड्रेस। तो यहाँ पर हम बताया कि दूसरा पार्ट प्रेजेंट सिंपल है, बट टुडे दिया है तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेगा। सो जेन इज वियरिंग हर ब्लू जीन्स टुडे। ठीक है, और दूसरा पार्ट प्रेजेंट सिंपल के साथ पेयर ले रहा है। ठीक है, व्हेन द मीटिंग बिगेन एवरीबॉडी टुक डैश, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं। क्वेश्चन 29 को देखो, ईच एवरी ईदर नीदर जब भी आएंगे, ईच एवरी ईदर नीदर या फिर नन, ये जब भी आएंगे तो ये अपने साथ जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, नोट कर लेना। और ये पोजीशन में भी सिंगुलर सिंगुलर जो है पर्सन लेते हैं, या सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर लेते हैं, पोजीशन में क्या लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसीलिए एवरीबडी टुक हिज सीट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आई वंडर वेदर आई डैश। तो मैं सोचता हूँ या मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि मुझे कि मैं काश उसको कभी देख पाऊंगा, या काश के सेंस में भी होता है हिंदी में। तो इसमें हमेशा कंडीशनल में वुड लग जाता है या कुड लग जाता है, वुड या कुड लगता है कंडीशन में। यहाँ पर क्योंकि कुड है नहीं ऑप्शन में तो वुड लग जाएगा। ठीक है, कंडीशन में वुड लग जाता है, ये याद रखना। क्वेश्चन 31, बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट डैश द न्यू प्लान इन अकॉर्डेंस विद। अकॉर्डेंस टू नहीं, अकॉर्डिंग टू होता तब तो ठीक था, अकॉर्डेंस नाउन आ जाता तो उसके साथ इन और विद लगता है। ठीक है, कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर नेम्स ऑन द टॉप ऑफ द पेज। देखोगे आप पेपर में पूरा जनरल इंग्लिश को आपको एक्सेस कर रहा है। सो द गर्ल, इसमें हमें सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। द गर्ल इज टेकिंग बिस्किट्स एवरीडे। सो देखिए, एवरीडे जब भी आता है तो हैबिचुअल एक्शन बताता है, तो प्रेजेंट सिंपल यूज कर लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा दीजिए। द गर्ल टेक्स बिस्किट्स एवरीडे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली मोस्ट और हाईएस्ट दोनों थर्ड डिग्रीज एक साथ नहीं लगेंगी, और थर्ड डिग्री से पहले द लगेगा तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद आई इंजॉयड वेरी मच ड्यूरिंग द समर। देखिए ये प्रोनाउन के लॉजिक को लग रहा है, जब भी हम इस तरीके के सेल्फ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं, जैसे एंजॉय, एब्सेंट, ठीक है, ड्रेस, ड्रेस एज अ वर्ब, हाँ, पहनना, और इंट्रोड्यूस, हम कहते हैं ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ड्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, वी वर एंजॉइंग आवर सेल्व्स। तो जब भी ये सारे वर्ब्स आते हैं तो इनके साथ नोट कर लेना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, प्रोनाउन के सेक्शन से उठाया उठाया क्वेश्चन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई इंजॉयड माई सेल्फ, आई के साथ रिफ्लेक्सिव में माई लग जाएगा, ड्यूरिंग द समर, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 में आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स में। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें हो जाएगा इवेंचुअल, सी हो जाएगा, कंसेंसस, बी हो जाएगा, कंसेंसस आम सहमति। हरासमेंट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हरासमेंट। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, लग तो आसान रहा होगा मगर इतना आसान है नहीं। ठीक है, तो हरासमेंट में सिंगल आर होता है और डबल एस होता है, हरासमेंट। ठीक है, अब एम्बेरसमेंट जस्ट अपोजिट होता है, इसमें डबल आर होता है और डबल एस होता है। ठीक है, आएगा ही एग्जाम्स में। और फिर हम देखते हैं 40 वाला, मिलेनियम। तो मिलेनियम में डबल एल और डबल एन, मिलेनियम इज अ पीरियड ऑफ 1000 years। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, हमें क्या करना है गाइस, इसमें हमें एंटोनिम देखना है। तो विदड्रॉ, विदड्रॉ मीन्स पीछे हट जाना, तो एडवांस हो जाएगा। ऑ मीन्स भौचक्का, आश्चर्यचकित हो जाना, या बहुत ज्यादा किसी से प्रभावित हो जाना, तो कंटेम्प्ट, निंदा मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका। मीगर मीन्स बहुत ही जो है नगण्य, निग्लेजिबल के सेंस में यूज होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जेनरस, उदार। पिवटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरे ख्याल से इसका अनइम्पॉर्टेंट होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद फिर एक्सटेसी, एक्सटेसी मीन्स चरम आनंद। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा पेन, ठीक है, पीड़ा कह सकते हैं हम हिंदी में। ठीक। उसके बाद फिर एक्स्ट्रावेगेंट का हमें सिनोनिम देना है, तो एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडथ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा जो खर्चा करता है। स्लॉथफुल का होता है गाइस लेजी। ठीक। और फिर उसके बाद सम्चुअस, सम्चुअस मीन्स वैभवशाली, भव्य, बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं शाही, तो गॉर्जियस हो जाएगा। इंस्क्रूटेबल मीन्स जो आसानी से समझ में ना आए, यानी मिस्टीरियस। और फिर सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट क्या होता है गाइस? पवित्र। ठीक है, सेक्रेड, बहुत अच्छा वर्ड है सैक्रोसेंट। ठीक है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है यहाँ पर? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, एजेंडा। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, फेटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी। प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एज आर्काइव्स। यहाँ गाइस स्कलरी का मतलब बता देता हूँ। स्कलरी स्मॉल किचन या फिर रूम होता है जो कि बैकयार्ड में होता है। ठीक है, जहाँ पर जनरली हम लोग जो अनयूज्ड प्रोडक्ट्स हैं, या अनयूज्ड जिसे हम कह सकते हैं यूटेंसिल्स हैं, बर्तन वगैरह हैं, उनको रखते हैं। ठीक है। फिर रेमेडी फॉर ऑल डिजीज मैंने किया। और बाकी आपको पता ही है, नार्कोटिक्स रिलेटेड टू, यू कैन से, ड्रग्स, एंटीसेप्टिक वी नो। लिरिक इज अ स्मॉल पोएम आल्सो नोन एज सॉन्ग। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड एज इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके। अब देखते हैं यहाँ पर हमें इनके मीनिंग्स को बताना है। विद ओपन आर्म्स, वो आर्म्स वार्मली, टू क्राई वुल्फ, दैट मीन्स टू गिव फॉल्स अलार्म। बैग एंड बैगेज, ऑल द सॉरी, बैग एंड बैगेज इज with all one's belonging, to end in smoke, that is to come to nothing. And the last is a cock and bull story, which means an absurd tale. Okay. So guys, this was a small presentation, a small you can say video on the solutions of the lecturer Atal paper recruitment drive in Uttarakhand. So I hope you all enjoyed the learning of grammar. Please do share, like, and comment and subscribe this channel. And also do let me know whether you would like to further continue this trend of the paper solutions. And see you soon in my next video. And all the guys who are filling the form for Atal recruitment, please do, you can say, join our WhatsApp group, which is there in the description. Thank you so much.